So, admission. We should start with question number 63 today. So, question number 63. In this, we don't have to prepare revaluation account. How many of you don't know how to prepare revaluation account? Harsh? You know how to prepare revaluation account? Yes. Nobody speaks. Ashley, you know how to prepare revaluation account? Yes, sir. Good. हर्ष मोबाइल रख के सो गए हैं. चलो, क्वेश्चन नंबर 63 from your book. In this, we have to record the transaction in journal entries and draw out the balance sheet of the new firm. तो देखिए, सबसे पहले हम गुडविल वैल्यू करनी पड़ेगी. गुडविल वैल्यू करने के लिए हमको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा. You all know how to value average profit. That is 21,000 plus 24,000 plus 25,560. 560 divided by 3. टोटल कितना आ जाएगा आपका? 560, 5 और 5 10, 1 5 6 7. 70,560 divided by 3. 3 to the 6, 3 3 the 9, 3 5 the 15 और 2 3. 3 to the 6 divided by 15, 3 to the 6. ठीक है. So goodwill will be equals to average profit 23520 multiplied by 2. Multiply by 2. Please check the calculations. 0, 4, 2, 5 the 10, 2 3 the 6, 7, 2 to the 4. 47,040. That is goodwill. इसमें C is coming for 1/8 share. So C share of goodwill will be equals to 47,040 into 1/8. कितना आ जाएगा? 8 5 the 40, 8 8 the 64, 8 8 the 64, 0. Clear? Now he is saying in the second B part, C is to bring cash for the amount of a share of goodwill, and C is to bring cash 15,000 as his capital. So bank account debit to C's capital account, to premium for goodwill. 15,000, 5,880, total 20,880. Premium for goodwill debit, for goodwill account debit to A's capital account to B's capital account. Now the 5880 will be distributed in which ratio? Harsh,
Harsh, are you there? Harsh, where are you? The board is visible to you, Harsh. Very good, bete. You are not there. So, Ashni, the goodwill is being distributed between all partners in which ratio? Sir, in old ratio. Old ratio? Yes, sir. No. Sir, sacrificing ratio. Sir, sacrificing I think ratio. here the old ratio is the sacrificing ratio. But अगर आपसे पूछा जाए the goodwill brought in by the new partner will be distributed among all partners in which ratio, then the answer should be sacrificing ratio. Clear? So here the new old ratio is the sacrificing ratio, that is 3:2. So 5 से डिवाइड कर दें, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 और 5 6 जा 30 into 2, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 15, 3 2, 2 3 5 2 और 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 6 जा 18, 1 3 7 जा 21, 22, 3 2 5 3 1 जा 3, 3 5 2 8. Got it? Now the balance sheet. अब बैलेंस शीट में कोई और चेंजेस तो दिए ही नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ याद रखिए यहाँ कैपिटल में ए की कैपिटल कितनी आएगी? ए की कैपिटल पहले कितनी थी? 51,450 प्लस 3528, 3528 इतनी और क्रेडिट हो गई। बी की कैपिटल कितनी आएगी? पहले कितनी थी? 36,750 प्लस 2352, इतनी और क्रेडिट हो गई। और सी नया पार्टनर आ गया है, इसकी कैपिटल ये 15,000 लेके आया और इधर क्या चेंज आएगा? बैंक बैलेंस में, बैंक बैलेंस या कैश बैलेंस आपका दिया हुआ था क्वेश्चन में, कैश बैलेंस आपका दिया हुआ था 1500 और कैश बैलेंस हमारे पास और कितना आ गया? 20,880। क्लियर? तो अब देखिए दोनों साइड में और कोई चेंजेस नहीं है। तो देखिए और कोई चेंजेस नहीं है इस बैलेंस शीट में, सिर्फ इतना ही चेंज है। देखिए ये कुल मिला के कितना है? 5,880। इतने से लायबिलिटी बढ़ गई और 15,000 से और बढ़ गई। इधर बैंक बैलेंस टोटल 15,000 प्लस 5,880 20,880 से बढ़ गया। और एज इट इज पूरी बैलेंस शीट कॉपी कर देंगे और बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। Is it clear? If you have any confusion, please ask me right now. If you have any confusion, you can ask me right now. Yes? No confusions? Then I should take question number 65. Question number 65 I am going to solve. Please see carefully.
इसमें आपको पहले जर्नल एंट्रीज करनी है, फिर रिवैल्यूएशन बनाना है, फिर कैपिटल बनाना है, फिर बैलेंस शीट बनानी है। क्वेश्चन नंबर 65। तो पहले मैं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट वगैरह जर्नल एंट्रीज बता रहा हूं। जर्नल एंट्रीज एग्जाम में बहुत आती हैं, ठीक है। देखिए मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, आई एम एक्सप्लेनिंग यू अगेन द रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो याद रखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज द नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मींस when there is loss, revaluation account will be debited, and when there is profit, the revaluation account will be credited. लॉस कब होगा? एसेट्स अगर इंक्रीज होते हैं तो प्रॉफिट, एसेट्स अगर डिक्रीज होते हैं तो लॉस। लायबिलिटीज अगर इंक्रीज होती हैं तो लॉस, एंड लायबिलिटीज अगर डिक्रीज होती हैं तो प्रॉफिट। इतना आप याद रखिए। नाउ in revaluation account there is no capital and no goodwill. B point, come to B point. Plant is to be appreciated to 1,20,000. प्लांट बढ़ रहा है यानी प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, ठीक है। अगर प्रॉफिट होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, और अगर लॉस होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। इतना याद रखिए। तो प्लांट इज एप्रिशिएटेड टू 1,20,000। एप्रिशिएट हो रहा है यानी प्लांट बढ़ रहा है, दैट मींस प्रॉफिट हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा और प्लांट अकाउंट डेबिट होगा। तो प्लांट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, देखिए प्लांट पहले कितना था? 1 लाख था। प्लांट पहले 1 लाख था, अब 1,20,000 हो गया है। That means plant has been appreciated by 20,000. ठीक है। Next, the value of building is to be appreciated by 10%. बिल्डिंग भी बढ़ रही है। Same point. बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, account debit to revaluation account. Account बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बिल्डिंग पहले कितनी थी? 1,50,000। नाउ इट इज इंक्रीजिंग बाय 10%। तो यानी 15,000 से बिल्डिंग इंक्रीज हो रही है। अंडरस्टूड? स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यू। ये पाया गया स्टॉक कितना लिखा हुआ है बैलेंस शीट में? 40,000। और ये पाया गया कि ये 4,000 से ओवर वैल्यू है, यानी हमको एक्चुअल निकालने के लिए 4,000 कम करना पड़ेगा स्टॉक को। जो बैलेंस शीट में लिखा है वो 4,000 ज्यादा है, तो यानी स्टॉक हमारे एसेट है और वो लॉस डिक्रीज हो रहा है, दैट मींस लॉस हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 4,000. Got it? Provision for doubtful debt is to be created at 5% of sundry debtors. देखिए इससे हमारे डेटर्स कम हो रहे हैं। प्रोविजन को हमेशा आप लायबिलिटी मानिए। कंसिडर प्रोविजन एज लायबिलिटी, और लायबिलिटी बढ़ रही है, दैट मींस लॉस हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर bad debts. Provision for bad debts 5% on debtors. So 60,000 का 5% is debtors are 60,000.
60,000 का 5% हमें प्रोविजन क्रिएट करना है, दैट मींस 3,000. लास्ट की पॉइंट, क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1,000. यानी क्रेडिटर्स पहले अनरिकॉर्डेड थे, अब हमको रिकॉर्ड करने हैं. रिकॉर्ड करने का मतलब क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ रही है, दैट मींस लॉस हो रहा है, रिवैल्यूएशन डेबिट होगा. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट 1,000. अब देखिए ये दोनों में रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ है और इन तीनों में रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है. आप इन दोनों को एक साथ भी कर सकते थे, प्लांट अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और इन तीनों को एक साथ कर सकते थे, रिवैल्यूएशन डेबिट टू स्टॉक, टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, टू क्रेडिटर. अब क्या करेंगे, हम डेबिट वाले को अलग से ऐड कर लेंगे. डेबिट वाले को ऐड करेंगे तो 20 प्लस 15 35 आ रहा है, और क्रेडिट वाले को हम अलग से ऐड कर लेंगे, दैट मींस 4,000 7,000 8,000. तो आंसर क्या आ गया आपका, डेबिट साइड में ज्यादा है, क्रेडिट साइड में कम है, और डिफरेंस कितना है 27. तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन आ गया 27,000, और क्रेडिट साइड में कम है, क्रेडिट साइड में कम है, सॉरी रिवैल्यूएशन को देखेंगे. रिवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड का बैलेंस है 35,000 और डेबिट साइड का बैलेंस है 8,000. तो डेबिट साइड में कम है, तो डेबिट साइड में हम जो कम है उसको लिख देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट 27,000, और ये हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे, ए और बी. टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट. 27,000 को ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे तो 2:1 है ओल्ड रेशियो, तो 18,000 एंड 9,000. क्लियर. रिवैल्यूएशन अकाउंट की जर्नल एंट्रीज क्लियर. नाउ पहला पॉइंट, he will bring 1 lakh capital and 60,000 as a share of goodwill. So bank account debit to seize capital account to premium for goodwill. 1 lakh 60,000. 1 lakh 60,000. Clear? Just keep quiet, bete, and go upstairs. Go up. Move. Yes. Then जितना वो गुडविल लेके आया है वो ओल्ड पार्टनर्स सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट लेंगे. प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल. यहां भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो ही होगा. Yes. 2:1, that means 40,000 and 20,000. Clear? इसके अलावा देखिए लायबिलिटीज में कुछ नहीं दिया है और एसेट्स में भी कुछ नहीं दिया. चलिए, तो these are the journal entries. किसी को कोई कंफ्यूजन है इन जर्नल एंट्रीज में? Anyone has any confusion in these journal entries? No, sir. Good. Anybody else? So should I rub these? Should I rub these journal entries?
Now revaluation account. Revaluation account. देखिए याद रखिए, एसेट्स अगर बढ़ेंगे तो इधर से, और एसेट्स अगर कम होंगे तो क्रेडिट डेबिट साइड से। लायबिलिटीज बढ़ेंगी डेबिट साइड से, लायबिलिटीज कम होंगी क्रेडिट साइड से। क्लियर? तो अब देखिए